From today, I will start next practical topic, that is chapter 9, books of original entry, journal. In this chapter, we you should be able to understand what is the book of original entry, meaning, rules, and recording of journal entries. These are the major topic in this chapters. The book in which transaction is recorded for first time from the source of document is called books of original entry. Journal is one of the basic book of original entry in which transactions are originally recorded in a chronological means day to day order according to principle of double entry system. इसका मतलब ये है कि जितने भी ट्रांजैक्शन डे टू डे होंगे उनको उसी सीरियल में हम लोग जिस बुक्स में लिखेंगे उस बुक्स का नाम जर्नल एंट्री होता है. If the size of business is a small one, then it is possible to enter each and every transaction in journal. यदि बिजनेस छोटा है आपका तो केवल जर्नल एंट्री में ही आप सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर सकते हैं. बट व्हेन द साइज ऑफ द बिजनेस grows, it become no longer possible to record each and every transaction in journal. Then journal is subdivided into number of sub journal. तब हम जर्नल को और पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं और दैट इज नोन एज सब जर्नल. और स्पेशल पर्पज सब्सिडरी बुक्स और बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, यानी उसमें कुछ ट्रांजैक्शन तो हम जर्नल में करेंगे और कुछ ट्रांजैक्शंस के लिए हम स्पेशल पर्पज सब्सिडरी बुक्स बनाएंगे, उसमें उनकी एंट्री की जाएगी. द सब्सिडरी बुक्स आर कैश बुक, जिसमें हम सिर्फ कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन लिखेंगे. सेकंड, परचेज बुक. इन परचेज बुक वी विल रिकॉर्ड ओनली क्रेडिट परचेज ट्रांजैक्शन. क्रेडिट परचेज मीन्स उधार के ट्रांजैक्शन, बिकॉज कैश परचेज हम कैश बुक में लिख देंगे. थर्ड, सेल्स बुक. वी विल इनकॉर्पोरेट only credit sales transaction in sales book. Purchase return, if we return the goods to the vendor, यानी हमने जो माल खरीदा है उससे हम वापस लौटा रहे हैं ड्यू टू एनी डिफेक्ट, these transaction will incorporate in purchase book. Sales return book, if any consumer return goods to us due to any defect, we will incorporate this transaction in sales return book. Bills receivable books and bills payable books, these are another two books which is now not in your course. And last, journal proper, except all the transaction except these books are incorporated in journal proper books. So there is a difference between journal and journal proper books. I think now it is understand. यदि छोटा बिजनेस है तो सारी एंट्री हम जर्नल में कर लेंगे, और अगर बड़ा बिजनेस है तो हम हर ट्रांजैक्शन के लिए जर्नल सही के साथ साथ कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न्स, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल एंड जर्नल प्रॉपर बुक अलग से बनाएंगे. Now, first, what is journal? Journal is a book of original entry in which transactions are recorded first of all, as and when they take place. वो बुक है जिसमें पहली बार हम
ये वो बुक है जिसमें पहली बार हम किसी ट्रांजैक्शन को इनकॉर्पोरेट करते हैं। नाउ व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ जर्नल? जर्नल का फॉर्मेट क्या होगा, किस फॉर्मेट में हम जर्नल एंट्री करेंगे? तो देयर आर 5 कॉलम्स। फर्स्ट डेट, सेकंड पर्टिकुलर, थर्ड लेजर फोलियो जिसे हम शॉर्ट में LF का नाम से जानेंगे, फोर्थ अमाउंट डेबिट एंड फिफ्थ अमाउंट क्रेडिट। नाउ I will discuss one by one about all the columns. First, date. In the first column, the date of transaction is entered. The year and month is written only once till they change. The sequence of the dates and month should be strictly maintained. यानी हम सबसे पहले ऊपर ईयर लिख देंगे, उसके नीचे मंथ लिख देंगे और फिर डेट लिखेंगे 1 2 3, यानी उस महीने में जितने ट्रांजैक्शन हुए उन सब ट्रांजैक्शन की डेट लिख देंगे। लेकिन ये ध्यान रहे कि सभी ट्रांजैक्शन डेट वाइज एंटर किए जाएंगे। ऐसा नहीं 1 तारीख का हम बाद में ट्रांजैक्शन एंटर कर रहे हैं जर्नल में, 10 तारीख का पहले कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। सेकेंड, particulars. Each transaction affect 2 amount out of which one, each transaction affects 2 accounts, not amount, 2 accounts out of which one account is debited and other account is credited. The name of the account is debited written first and the word debit is also written towards the end of the column. In the second line, the name of account to be credited. The credit account start with the word of to. A few space away from the margin to make the distinct from the debit account. In other word, we can say कि हम, क्योंकि सभी ट्रांजैक्शन 2 जगह इफेक्ट करते हैं, तो सबसे पहली लाइन में जिस अकाउंट को हम डेबिट करेंगे उसका नाम लिखने के बाद कुछ स्पेस छोड़कर और उसके आगे डेबिट लिख देंगे। सेकंड लाइन में क्रेडिट के लिए हम CR वर्ड का यूज न करके हम टू वर्ड को यूज करते हैं, तो पहले टू लिखेंगे CR के लिए और फिर उस अकाउंट का नाम लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए हमने कैश अकाउंट को डेबिट करना है, हमने सैलरी अकाउंट को डेबिट करना है और कैश अकाउंट को क्रेडिट करना है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, फर्स्ट लाइन में कैश अकाउंट, कैश, देन अकाउंट एंड देन स्पेस छोड़ के डेबिट। फिर नीचे वाली लाइन में टू जो भी क्रेडिट में हम उसको करेंगे। अगर मान लीजिए मैं एक एंट्री बताऊं, एक एंट्री इसके एग्जाम्पल के रूप में बताऊं, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट। तो फर्स्ट वी विल राइट कैश अकाउंट, आफ्टर सम स्पेस DR एंड इन सेकेंड लाइन टू कैपिटल अकाउंट। तो ये क्रेडिट के लिए हम पहले टू कैपिटल लिख देंगे। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ the entry, we will brief explanation of the transaction together with the necessary detail is given. It is called narration. यानी हम एंट्री खत्म होने के बाद पर्टिकुलर के कॉलम में एक नरेशन लिखेंगे जो कि एंट्री के बारे में हमें ब्रीफ बताएगा। Third, laser folio or LF. All entry of the journal are latest posted into the laser account. The page number or folio number of the laser account where the posting has been made from the journal is recorded in LF column of the journal entry. For example, यदि
ये आप इसका मतलब यूं समझिए कि हर जर्नल एंट्री की हमको लेजर बनानी पड़ेगी, लेजर बुक खोलनी पड़ेगी। तो जितनी भी एंट्री जितनी भी एंट्री उन सब की हम एक एक लेजर ओपन करेंगे लेजर बुक में। तो जिस पेज पर उस जर्नल एंट्री को हमने लेजर में लिखा है वो पेज नंबर हम जर्नल फोलियो में लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल कैश का खाता, कैश अकाउंट डीआर यदि है जर्नल एंट्री में, कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट एक एंट्री है, तो हम लेजर में पहले कैश अकाउंट खोलेंगे और कैश अकाउंट लेजर में जिस पेज पर है वो पेज नंबर हम जर्नल फोलियो में लिखेंगे, जिससे जब भी कभी हम जर्नल खोलें तो हमें पता रहे कि इस व्यक्ति की लेजर कौन से पेज पर है। बट सारे क्वेश्चन में हम लेजर फोलियो ब्लैंक रखेंगे। ये केवल जानकारी के लिए कि व्हाट इज लेजर फोलियो। नेक्स्ट, अमाउंट डीआर। In the fourth column, the amount of the account being debited in return, and in fifth column account CR. In the fifth column, the amount of the account being credited in return. These are the 5 columns of journal entry. Now, what are the steps? First, before recording a journal entry, it is essential to analyze a transaction in order to determine the two accounts which are affected. Then, on the basis of the rule of journalizing, it must be decided as to which account is to be debited and which account is to be credited. इसका मतलब ये है कि पहले जो ही ट्रांजेक्शन को हम पढ़ लें तो पहले हम रूल्स के अकॉर्डिंग ये पता कर लें कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा बिफोर एंटरिंग इनटू जर्नल। सेकेंड, इट इज नॉट नेसेसरी टू यूज द वर्ड अकाउंट आफ्टर द पर्सनल अकाउंट। जब भी किसी व्यक्ति के नाम को हम डेबिट या क्रेडिट करेंगे तो उसके आगे अकाउंट वर्ड लिखना जरूरी नहीं। Third, after every journal entry, a line should be drawn in a particular column so that each entry is separate from the preceding ones. जो ही एक एंट्री कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम उसमें नरेशन लिख देंगे और फिर एक लाइन का गैप देने के बाद नेक्स्ट एंट्री वी विल स्टार्ट, जिससे कि हमें अलग अलग एंट्री के बारे में पता चल जाए। एंड फोर्थ एंड लास्ट, at the end of the page, both the debit and column are totaled up just in front of each other. The total must be equal because the amount of debit of each entry equals to the amount of credit. These total are carried forward to next page progressively up to the end of accounting period. For this purpose, the word carry forward as written in particular column at the end of each page and word brought forward BF are written to start each page. कहने का मतलब मेरा ये है कि जो ही एक पेज में मान लीजिए आपकी 5 जर्नल एंट्री हुई, बाकी ट्रांजैक्शन पेंडिंग है, तो 5 जर्नल एंट्री करने के बाद लास्ट की लाइन में आप लिखेंगे टोटल, और टोटल लिखने के बाद आप उसके आगे CF और लिखेंगे। CF मीन्स कैरी फॉरवर्ड। जब अगले पेज पे जर्नल एंट्री शुरू करेंगे तो सबसे पहले वहां टोटल BF लिखेंगे, यानी ये पिछले पेज का जो टोटल है वो पहले नेक्स्ट पेज के टॉप पर हम टोटल BF करके लिखेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट एंट्री। जो ही मान लीजिए इस पेज पे भी स्पेस कम हो गई तो फिर पहले पेज के टोटल को इंक्लूड करते हुए इस सारे ट्रांजेक्शनों के टोटल को फिर नीचे लिखेंगे टोटल CF और फिर नेक्स्ट पेज पर टोटल BF। ये प्रोसेस तब तक चलेगी जब तक कि पूरे ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हो जाए। आई थिंक नाउ इट इज क्लियर टू ऑल। व्हाट आर द रूल्स ऑफ जर्नल? लास्ट चैप्टर में मैंने आपको, लास्ट टॉपिक में चैप्टर में मैंने आपको
जर्नल के 3 रूल: पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल. The rule of personal account: debit the receiver and credit the giver. For example, if we gave 20,000 to Gopal, हमने गोपाल को 20,000 रुपए का पेमेंट किया. गोपाल इज द रिसीवर, तो गोपाल को हम डेबिट कर लेंगे. और सेकंड अकाउंट, जब हमने उसको पे किया तो कैश किया. कैश इज रियल अकाउंट. So the rule, second rule will be applicable real account. और रियल अकाउंट का क्या रूल है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. यहां पर गोपाल को हमने पैसे दिए तो क्रेडिट, क्योंकि पैसे दिए, देने वाली चीज को हम क्रेडिट करते हैं, तो टू कैश अकाउंट. इसी तरह सेकंड में रियल अकाउंट. रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. जो चीज आई उसे डेबिट करें, जो चीज गई उसे क्रेडिट करें. फॉर एग्जाम्पल, हमने मशीनरी परचेज की, परचेज मशीनरी फॉर 5 लाख. तो यहां पर मशीनरी वो भी रियल अकाउंट है, और मशीनरी को परचेज करने के लिए हमने कैश दिया 5 लाख, तो वो भी रियल अकाउंट है. ये ध्यान रखें, रिमेंबर, रियल अकाउंट अकेला एंट्री कर सकता है, जबकि पर्सनल और नॉमिनल के साथ ये अकेले एंट्री नहीं कर सकते. इसके साथ कोई दूसरे अकाउंट का रूल भी एप्लीकेबल होगा. तो यहां पर डेबिट व्हाट कम्स इन, मशीनरी खरीदी तो क्या चीज आई हमारे पास? मशीनरी. तो मशीनरी को हमने डेबिट कर लिया. एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या चीज गई? कैश. तो हमने कैश को क्रेडिट कर लिया. एंट्री विल बी machinery account DR to cash account. You can see from following illustration. And third, nominal account. According to the rule, debit all expenses and losses and credit all income and gains. अब इस एग्जाम्पल से आप इसे समझिए. पेड सैलरी 20,000, सैलरी को पे किया 20,000. तो ऐसी कंडीशन में सैलरी इज एक्सपेंसेज और कैश. एक्सपेंसेज है तो नॉमिनल अकाउंट का रूल एप्लीकेबल होगा, और दूसरा कैश तो रियल अकाउंट का रूल एप्लीकेबल होगा. एक्सपेंसेज तो नॉमिनल का रूल है ऑल एक्सपेंसेस डेबिटेड, तो हमने सैलरी अकाउंट को डेबिट करना है. और उसके बाद दूसरा रूल रियल का एप्लीकेबल होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो सैलरी में हमारे पास आने की कोई चीज नहीं है, लेकिन जाने के लिए कैश है, तो हम टू कैश अकाउंट कर देंगे. इसी तरह रिसीव्ड कमीशन में कैश आया हमारे पास तो रियल अकाउंट है, और कमीशन रिसीव्ड इनकम है तो इनकम को हम क्रेडिट करेंगे नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग. तो एंट्री विल बी कैश अकाउंट DR to commission account. Now, here it is important to know what is the meaning of goods. What is the meaning of goods? The goods are those things which are purchased for resale. यानी हम गुड्स उसी कमोडिटी को मानेंगे जो हम रीसेल के लिए खरीद रहे हैं, जो एक ही बार खरीद रहे हैं और बिजनेस को चलाने के लिए खरीद रहे हैं. जैसे मशीनरी हो गई, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, फर्नीचर हो गया. इट विल नॉट इंक्लूडेड इन द टर्म ऑफ गुड्स. इन अदर वर्ड्स, गुड्स आर द कमोडिटी इन विच द बिजनेस डील्स. फॉर एग्जाम्पल, इफ ए क्लॉथ मर्चेंट परचेज क्लॉथ, तो क्लॉथ टर्म एज परचेज. तो हम क्लॉथ जब भी खरीदेगा ये, तो हम उसके लिए परचेज यूज करेंगे. बट इफ सेम क्लॉथ मर्चेंट परचेजेज सम फर्नीचर, से चेयर एंड सोफा फॉर सिटिंग ऑफ कस्टमर, फर्नीचर, सो परचेज विल नॉट टर्म एट परचेजेज. तो हम फर्नीचर को परचेज की कैटेगरी में नहीं लेंगे. इट इज एन असेट्स of his business,
So in the case furniture will be debited instead of purchase account. जब हम एंट्री करेंगे तो परचेज अकाउंट की जगह हम फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करेंगे. गुड्स आर क्लासिफाइड इनटू 5 टर्म्स. फर्स्ट परचेज तो मैंने आपको बता ही दिया. व्हेन गुड्स आर परचेज इंस्टेड ऑफ डेबिटिंग गुड्स अकाउंट परचेज अकाउंट इज डेबिटेड. जब भी हम बिजनेस के लिए माल खरीदेंगे तो हम गुड्स को डेबिट नहीं करके उसके लिए हमेशा परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे. परचेज अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट while the passing a journal entry. Purchase account should always be debit because the rule debit all expenses and losses. तो माल खरीदना ये बिजनेस के लिए एक्सपेंसेज होता है तो हमेशा परचेज को हम डेबिट करेंगे. आगे मैं बताऊंगा कि मोस्टली परचेज हमेशा डेबिट होता है बट इन सम केस इट मे बी क्रेडिटेड. वो वी विल डिस्कस लेटर. अभी आप यही मान के चलें कि जब भी हम माल खरीदेंगे तो परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे. देन सेल्स. व्हेन गुड्स आर सोल्ड इंस्टेड ऑफ क्रेडिट गुड्स अकाउंट. जब माल बेचेंगे तो गुड्स को क्रेडिट करने की जगह हम सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे. इट इज ऑल्सो ए नॉमिनल अकाउंट और द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स. माल को बेचने से हमें पैसा मिलता है इसलिए सेल्स हमेशा क्रेडिट ही होगी. जर्नल एंट्री को करते समय ध्यान रखें कि सेल्स कभी भी डेबिट नहीं होगी. थर्ड, परचेज रिटर्न. दिस अकाउंट इज ऑल्सो नेम्ड एज रिटर्न आउटवर्ड. इसका दूसरा नाम रिटर्न आउटवर्ड भी है. इट इज ऑल्सो नॉमिनल अकाउंट. तो वी शुड ऑलवेज क्रेडिट बिकॉज परचेज रिटर्न इज एक्सपेंस आर रिड्यूस्ड. क्यों करेंगे? जो माल हमने खरीदा उसको वापस लौटा है. इसका मतलब हमारा खर्चा कम हुआ है. खर्चा कम होने का मतलब इनडायरेक्टली इट्स इनकम. तो हम परचेज रिटर्न को हमेशा क्रेडिट करेंगे. सेल्स रिटर्न. दिस अकाउंट नोन एज रिटर्न इनवर्ड आल्सो. इट इज आल्सो ए नॉमिनल अकाउंट. इट ऑलवेज शुड बी डेबिटेड बिकॉज इनकम रिड्यूस. जब माल वापस लौटा देता है कोई भी तो ऐसी कंडीशन में हमारी इनकम रिड्यूस हो जाती है तो इट्स इनडायरेक्टली एक्सपेंस. तो हम इसे हमेशा डेबिट करेंगे. तो दी एंड लास्ट स्टॉक अकाउंट. स्टॉक जो होता है एट द एंड ऑफ द ईयर जितना माल हमने खरीदा और जिसमें से हमने बेच दिया तो बैलेंस इज नोन एज स्टॉक अकाउंट. एंड टुडेज लास्ट टॉपिक इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन. यानी जर्नल एंट्री करते समय हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए. दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स. व्हाट इज फर्स्ट? इफ द ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू परचेज और सेल्स ऑफ गुड्स द नेम ऑफ परचेजर और सेलर इज नॉट गिवन इट इज कंसिडर्ड एज ए कैश ट्रांजैक्शन. जब भी हमने किसी व्यक्ति से माल खरीदा या उसको माल बेचा और ट्रांजैक्शन में यदि उसमें किसी का भी नाम नहीं दिया हुआ है तो ऐसी कंडीशन में हम ये मान के चलेंगे कि ये ट्रांजैक्शन कैश का ट्रांजैक्शन है. इसके लिए एग्जांपल, गुड्स सोल्ड फॉर 50,000. यहाँ पर गुड्स सोल्ड टू 50,000 तो हम ये मान के चलेंगे कि ये 50,000 का माल नगद बेचा गया है. और यदि इसकी जगह ये लिखा हुआ होता गुड्स सोल्ड टू महेश ₹50,000, it means it is credit sale, it is not cash sales. Second, if in the transaction relating to purchase or sale of goods the name of purchaser or seller is given along with cash, it is also considered as cash transaction. यदि किसी भी ट्रांजैक्शन में नाम के साथ साथ कैश वर्ड भी दे दिया गया है तो भी हम उसे कैश परचेज और कैश सेल्स मानेंगे इंस्टेड ऑफ क्रेडिट सेल्स. फॉर एग्जाम्पल, गुड्स सोल्ड टू गोपाल फॉर कैश. यहाँ पर नाम भी है. नाम होने से क्रेडिट हो जाता है, क्रेडिट सेल्स हो जाएगी. लेकिन चूंकि नाम के साथ कैश भी है
तो it is also treated as a cash sale instead of credit sale. And last one, if transaction related to purchase or sales of goods, the name of purchaser or seller is given and this is not started, whether it is cash or credit transaction, it considered to be credit transaction. यदि किसी व्यक्ति का नाम दिया है माल खरीदने में और बेचने में और कैश के बारे में कोई बात नहीं बताई गई है, छुपी हुई है, तो इट इज ट्रीटेड एज ए क्रेडिट सेल्स और परचेज. जैसे एग्जाम्पल, गुड सेल सोल्ड टू गोपाल, इट मीन्स it is credit sales. And last one, in case of expenses, even if the name of party receiving or making payment is given, it is still considered as cash transaction. हमेशा जो भी खर्चे होंगे उसमें हम नाम भी दे दें और कैश नहीं लिखें तो भी हम उसे सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रीट करेंगे. यानी सैलरी पेड टू मोहन, इसका मतलब ये नहीं कि सैलरी उधार रह गई. It means salary paid in cash to मोहन. जितने भी एक्सपेंसेज है उसमें यदि नाम भी दे दिए गए हो तो भी हम सारे के सारे को हम कैश ही ट्रीट करेंगे. This is all for today. I will start journal entry, how to make journal entry in our next period. Thank you very much and have a nice day.